Good morning, students. I welcome you all in your virtual class of English. Now it's time to pray to God. So join your hands and start reciting prayer. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करके कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल करके कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Children, today we will revise 6th chapter of your reader book, The Ugly Duckling. This chapter is given on page number 34 of your reader book. बच्चे, स्टोरी आपको याद है ना? अगली डकलिंग की स्टोरी। स्टार्टिंग में वो डकलिंग अगली होता है और फिर जब स्टोरी का एंड होता है तब वो डकलिंग कैसा हो जाता है? ब्यूटीफुल, है ना? नाउ लेट्स रिव्यू द स्टोरी थ्रू इट्स एनिमेशन. One bright spring morning, a mother duck was pleased that her eggs had begun to hatch. My imagination. Cheep cheep, chirped the chicks. Mother duck was very proud of her fluffy ducklings, but one of them looked different from the others. Quack quack, how can that duckling be one of mine? She wondered. He is so big and ugly. All the other chicks were mean and teased Sammy, the ugly duckling. They didn't want to play with him. Poor Sammy was very sad. One day, he packed his bags and left home to look for someone to be his friend. Soon, he reached a pond where some other ducks were playing, but they didn't want to be his friends either. Poor Sammy was very unhappy and waddled away. He was so sad that he hid himself by the river bank all through the summer. One day, he watched some beautiful swans fly past him. I wish I were as magnificent as a swan, he sighed. That winter it began to snow. Sammy was cold and all alone. Soon a kind farmer found him and decided to take him home and look after him. At last I have found a friend, smiled Sammy. When the spring came, the farmer took Sammy back to the river. He looked at his reflection in the lake, and lo and behold, what did he see? I am not an ugly duckling anymore. I am a beautiful swan, he cheered. Sammy had never been so happy in all his life. Now, page number 35, we will do exercise part. Choose the correct option. Who was pleased to see the eggs hatch? चैप्टर में अपने एग्स को हैच होते हुए देखकर कौन खुश हुई थी? मदर डक
father duck or swans? What was the name of ugly duckling? Ugly duckling का क्या नेम था? सैमी, जॉय और ब्रूनो? Who decided to take Sammy along with him? किसने सैमी को अपने साथ ले जाने के लिए डिसाइड किया था? किसने डिसाइड किया था कि वो अपने साथ सैमी को लेकर जाएगा? आपने स्टोरी पढ़ी है ना बच्चे? टेलर, फार्मर और टीचर. नाउ ट्रू फॉल्स. One of the ducklings looked different from the others. एक डकलिंग दूसरे डकलिंग से डिफरेंट लगता था. All the other chicks were very friendly. सभी जो दूसरे चिक्स थे वो बहुत फ्रेंडली थे. The ugly duckling packed his bag and left his home. अगली डकलिंग ने अपना बैग पैक किया और अपना घर छोड़ दिया था. The farmer took Sammy back to the farm. फार्मर सैमी को वापस फार्म में छोड़ गया था. फार्मर ने सैमी को फार्म में छोड़ा था. नाउ ट्राई. नाउ क्वेश्चन आंसर्स. Answer the following questions. What was the mother duck proud of? Mother duck किस बात के लिए प्राउड फील कर रही थी? आपने स्टोरी पढ़ी है ना बच्चे? मदर डक किस लिए प्राउड फील कर रही थी? किन पर प्राउड फील कर रही थी? Why did not the other chicks want to play with Sammy? जो दूसरे चिक्स थे वो सैमी के साथ क्यों नहीं खेलना चाहते थे? वाई. वाई मीन्स क्यों. नाउ ट्राई. नाउ नेक्स्ट वन. वाई वॉज द अगली डकलिंग सैड? अगली डकलिंग क्यों दुखी था? सैड मीन्स दुखी. मालूम है ना आपको बच्चे वो क्यों दुखी था? What did the ugly duckling do in order to find a friend? अगली डकलिंग ने अपने लिए एक फ्रेंड ढूंढने के लिए क्या किया था? What? What means क्या किया था? Now बच्चे try. Now page number 37. My word bank building vocabulary. Words that have the same meaning are called synonyms. बच्चे synonyms कौन से words होते हैं जिनके same meaning होते हैं? ओके. फॉर एग्जाम्पल small and tiny. अब बच्चे देखिए small का मीनिंग भी छोटा और tiny का मीनिंग भी छोटा. तो ये दोनों वर्ड्स क्या हुए? synonyms, क्योंकि इनके मीनिंग सेम है. अब देखिए बिग एंड लार्ज. बिग मीन्स बड़ा, लार्ज मीन्स भी बड़ा. तो दोनों के मीनिंग सेम है. तो ये दोनों क्या हुए बच्चे? सिनोनिम्स. तो सिनोनिम्स कौन से वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग्स सेम होते हैं? ओके. नाउ वी विल डू एक्सरसाइज पार्ट. राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. बच्चे ये नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और यहाँ पर ब्लैंक्स हैं. इन ब्लैंक्स में हमने इन वर्ड्स के सिनोनिम्स लिखने हैं. सिनोनिम्स मीन्स बच्चे सेम मीनिंग वर्ड्स. ओके. टाइनी. टाइनी मीन्स छोटा. तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? स्मॉल. हैप्पी. हैप्पी मीन्स खुश. हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चे? ग्लैड. ग्लैड मीन्स भी खुशी, खुश होना. मैसी. मैसी मीन्स बिखरा हुआ. तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चे? अनटाइडी. ओके. स्टोन, ये तो आपको मालूम है, पत्थर. यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? रॉक. फास्ट. फास्ट मीन्स तेज. यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्पीड.
सैड, सैड मीन्स दुखी, ये तो आपको मालूम है. अनहैप्पी. हार्ड, हार्ड मीन्स सॉलिड. स्लिम, स्लिम मीन्स पतला. हम यहां पर क्या लिखेंगे बच्चे? थिन. ओके. नाउ वोकैबुलरी. MIDDLE मिडल, मिडल मीन्स बीच में. MAGIC मैजिक, मैजिक मीन्स जादू. MIRACLE मिरेकल, मिरेकल मीन्स चमत्कार. MIGHTY माइटी, माइटी मीन्स ताकतवर, strong. Okay? Now students, you will write these words in your English notebook. Advisory work is do exercise part of lesson 6 of English Reader and write vocabulary words in your English notebook. Children, let's listen what Shushma ma'am is going to tell us about the Kargil War. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. आई होप आपने पीरियोडिक असेसमेंट अच्छे से कंप्लीट की होगी. बच्चे आओ आज एक और इम्पॉर्टेंट डे के बारे में जानें. स्टूडेंट्स, आज कारगिल विजय दिवस यानी कारगिल विक्ट्री डे मनाया जा रहा है. आप जानते हो ये कारगिल क्या है? बच्चों, कारगिल हमारे इंडिया में इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर एरिया पर एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सन 1999 में पाकिस्तान के साथ इंडिया की वॉर हुई और वो वॉर इंडिया ने आज ही के दिन 1999 में जीत ली थी. इसलिए हम इस दिन को कारगिल विक्ट्री डे के रूप में मनाते हैं. हमारी इंडियन आर्मी ने बड़ी बहादुरी से इस वॉर को जीता था. वॉर में जीत तो हुई बच्चों, लेकिन हमारी आर्मी के कई सोल्जर्स को अपनी जान देनी पड़ी. देश की सुरक्षा के लिए, देश की सेफ्टी के लिए उन लोगों ने अपनी जान इस वॉर में कुर्बान कर दी. यह दिन उन्हीं सोल्जर्स को ट्रिब्यूट करने के लिए भी मनाया जाता है. इसके लिए हमारी इंडियन आर्मी ने कारगिल वार मेमोरियल भी बनाया और हर साल इस दिन को वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है. देश की बॉर्डर सेफ्टी में जान देने वाले सभी सोल्जर को आज के दिन याद किया जाता है और उन्हें सल्यूट किया जाता है. तो बच्चों, अब आप जान गए होंगे कि ये दिन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. ओके, थैंक यू बेटा. Till then, take care of yourself. Goodbye.